Assalamu alaikum everyone. So the topic of interest today is obturation, and in obturation we will be discussing bioceramic sealers in detail. So first of all, let's see what's the difference between MTA and bioceramic. Let me just open up the whiteboard so you guys can be easy. Okay. So the topic of interest is obturation. And in obturation, first of all, we all know that why sealers are important for obturation, because sealers actually create a seal between the obturation material and the root canal dentine wall. And there has been a lot of research and a lot of experiments right from the beginning of creating an obturating material or creating a root filling material which can create a monoblock. So there were different kind of advancements, uh, and one of these advancement is a bioceramic sealer, because bioceramic sealer has been shown to provide a three-dimensional seal, and in vitro studies show that there is no methylene blue penetration with bioceramic sealer, where a very slight penetration of methylene blue. Uh, so ultimately, we all need a sealer which promotes or which creates a seal which is three-dimensional, or it there can be no bacteria which can come into the obturation space or in the canal, or there can be a situation where the bacteria is entombed, or bacteria cannot grow in that kind of an environment. So this is what MTA and bioceramic sealers are all about. So let's see what's the difference between MTA versus bioceramic. So MTA is essentially a Portland cement. A Portland cement is a kind of cement which is not filtered. It has tricalcium silicate, it has dicalcium silicate, it has tricalcium aluminate, it has arsenic, it has chromium, it has lead, and most importantly, it has radio opacifier as bismuth oxide. What is the issue with bismuth oxide? Bismuth oxide is actually a kind of a radio opacifier which changes its color when it is in contact with different kind of tissues. When it is in contact with collagen, it would be giving a different color. When it is in contact with light, it will be going to be different. When it is in contact with blood, it will be different. And when it will be in contact with formaldehyde, it will be different. When it will be in contact with oxygen, it will be different. So due to these issues, we are not using bismuth oxide in uh, in MTA or in bioceramics these days. Okay, so the main issue in MTA is tricalcium aluminate and all these kind of trace elements. Tricalcium aluminate, when reacts with water, it forms a component called as ettringite. This ettringite is not good for organ function. It causes organ dysfunction, and it has been shown in the studies. अच्छा, तो अब क्या करें? अब इन्होंने सबसे पहले तो एमटीए में कोशिश की कि बिस्मथ ऑक्साइड को रिप्लेस कर दें, ताकि बिस्मथ ऑक्साइड जो डिस्कलरेशन का पोटेंशियल रखता है, जो कि ब्लैक ब्राउन डिस्कलरेशन करता है, वो डिस्कलर ना करे। उसकी जगह उन्होंने चीजें जो इंट्रोड्यूस करवाई, वो इंट्रोड्यूस करवाई जर्कोनियम ऑक्साइड या टैंटलम ऑक्साइड, और भी बहुत सारे रेडियो पेसिफायर्स इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, अब बायोसेरेमिक क्या है? बायोसेरेमिक इज filtered kind of a material. It is just tricalcium silicate, dicalcium silicate, and some other material with radio pacifier as zirconium oxide. अब होगा क्या? जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट कांटेक्ट करेगा वाटर के साथ, तो बना लेगा वो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बना लेगा और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बना लेगा, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है। जबकि यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो बना रहा था, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट भी बना रहा था, लेकिन जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो वो एक प्रोडक्ट बना लेता था जिसको कहते थे एट्रिंजाइट, और वो एट्रिंजाइट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, बाय प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। अच्छा, MTA and bioceramic has been used as a coronal material for pulp capping, for root as a root repair material, as an external repair material, and a material which can be used as indirect pulp capping, direct pulp capping, as an epexification material, and as a retrograde filling material. And this also has been used in sealers. So our sealers also tricalcium silicate based sealers, MTA sealer, tricalcium silicate based sealers. उन वो कौन कौन से सीलर्स हैं जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स होते हैं या बायोसेरामिक सीलर्स होते हैं? उनके अंदर जो हमारे पास याद रखने वाली है वो है, एक तो MTA+, ठीक है, फिर एक है MTA एंजलस, फिर है बायोसेरामिक सीलर। ठीक है, बायोसेरामिक सीलर में भी दो तरह के आ जाते हैं, एक है आई रूट SP और एक है BC सीलर। आई रूट SP और BC सीलर में भी फर्क है, हम उसके बारे में पता करेंगे। MTA फिल एपेक्स, आई रूट SP सीलर और BC सीलर। अच्छा जी, इन सब के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है। अच्छा, सीलर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और सीलर क्यों जरूरी होता है, ये हम सबको पता है कि सीलर शुड बी नॉन सॉल्यूबल, सीलर शुड बी नॉन टॉक्सिक, सीलर शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, सीलर शुड बी बायोकम्पैटिबल, सीलर शुड बी रेडियो ओपेक, सीलर शुड हैव बायोमिनरलाइजेशन प्रॉपर्टी, सीलर शुड हैव अ सीमेंटोजेनिक पोटेंशियल, कि जब वो सीलर पेरिएपिकल एरिया में अगर रिलीज हो गया तो वो सेमेंटम को रीजनरेट कर दे। Sealer should have a good bond between dentine and gutta percha material, and sealer should have the ability to bond to the dentine, or sealer should have the ability to form hydroxyapatite। तो ये सारे जो सीलर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बायोसेरेमिक सीलर में देखे जाते हैं। तो जब भी बायोसेरेमिक सीलर की क्वालिटीज आपको लिखनी होंगी तो बायोसेरेमिक सीलर की आप क्वालिटीज लिख सकते हैं। और इसमें खास तौर पे जो बायोसेरेमिक सीलर की क्वालिटीज हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है। सो कमिंग ऑन टू स्पेशली द BC सीलर्स, they are antibacterial, especially antibacterial because they have an anti-biofilm activity against E. faecalis. So anti-biofilm activity against E. faecalis makes them very good in retreatments against E. faecalis. They are hydrophilic. They are hydrophilic. And this, how do they set? They set by actually absorbing water from the nearby area, from the area around. So if you are using a bioceramic sealer, you don't need to be worried about if the canal is very dry or not. In fact, अगर canal बहुत ज़्यादा dry होगी and you are using a bioceramic sealer, what will a bioceramic sealer do? It will set at a later date. बहुत देर में set होगा as compared to अगर थोड़ा बहुत moisture होगा. So what I do is I put my paper point and I actually just put one paper point, जितना ड्राई हो जाए बाहर निकाला, and I use a bioceramic sealer. So bioceramic sealer की खास बात क्या हो गई कि ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होने के साथ साथ ये सेल प्रोलिफरेशन को भी प्रमोट करता है, सेल प्रोलिफरेशन को भी प्रमोट करता है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, और ये लेस साइटोटॉक्सिक है।
और इसका जो सेल प्रोलिफरेशन अफेक्ट है ये बायो मिनरलाइजेशन अफेक्ट भी कहलाता है। खैर, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना जरूरी है, वो ये है कि एक क्लासिफिकेशन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स की, या आप कह लें कि एमटीए की एक क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन का आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? हाइड्रोलिक सिलिकेट सीमेंट्स की क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोलिक सिलिकेट सीमेंट्स। अब हाइड्रोलिक सिलिकेट सीमेंट्स की क्या क्लासिफिकेशन है? ये होते हैं 5 टाइप्स के: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। अब जो टाइप 1, 2, 3 हैं, ये तीनों पोर्टलैंड सीमेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों पोर्टलैंड सीमेंट्स हैं। और टाइप 4 और 5 ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स हैं। अच्छा, अब इनमें एक और चीज है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट्स दे कैन बी एक्वस और नॉन एक्वस, यानी कि वहीकल जो है वो वाटर भी हो सकता है और नॉन एक्वस ऑर्गेनिक कोई वहीकल भी हो सकती है। कोई पॉलीमर हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिक वहीकल हो सकती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में ये 1 भी एक्वस है, 2 भी एक्वस है, 3 नॉन एक्वस है, और हाइड्रोलिक सिलिकेट सीमेंट में टाइप 4 जो है वो एक्वस है और टाइप 5 जो है वो नॉन एक्वस है। अच्छा, अब एक चीज होती है कि इनके अंदर मॉडिफायर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो टाइप 1 पोर्टलैंड सीमेंट में मॉडिफायर्स नहीं हैं, बाकी सब में मॉडिफायर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब इस बात का जिक्र करना जरूरी क्यों था कि जब भी हम ट्राई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पढ़ते हैं, जब भी आप देखेंगे कहीं भी पढ़ेंगे, तो एक होता है आई रूट एस पी सीलर और एक होता है बीसी सीलर। अब जो आई रूट एस पी सीलर होगा वो नॉर्मली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बेस तो है, लेकिन मीडियम क्या यूज हो रहा है? एक्वस मीडियम यूज हो रहा है। अब जो एक्वस मीडियम यूज हो रहा है, यानी कि वो उसके साथ जो वाटर है वो ऐड करेंगे, तब आप उसको मिक्स करेंगे और कनाल में यूज करेंगे। तो ये इसके साथ वाटर यूज हो रहा है, एक्वस है, और इसके साथ ये एक ही ट्यूब में आता है और इसके साथ कोई वाटर नहीं होता। इसके साथ जो नॉन एक्वस मीडियम होता है उसके अंदर ही होता है, वो ऑर्गेनिक नॉन एक्वस मीडियम होता है। अब इसको बताने का फायदा क्या है? इसको बताने का फायदा यह है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीलर्स जब लॉन्च हुए और जो एमटीए बेस्ड सीलर्स लॉन्च हुए, उनमें मसला ये था कि आप उन सीलर्स को कंटिन्यूस वेव ऑफ कंडेंसेशन टेक्निक या वार्म वर्टिकल टेक्निक या कोई भी थर्मोप्लास्टिक टेक्निक के साथ यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हीट गन या अपनी सिस्टम भी, या जो भी कैलमस का जो भी हीटेड एरिया है, जब आप उसको यूज करते थे, तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो एक्वस पोर्शन जो वाटर होता था वो एवेपोरेट हो जाता था, और उसकी वाटर एवेपोरेट होने की वजह से उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती थी। तो जब ही एक नॉन एक्वस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीलर निकाला गया, अब उस नॉन एक्वस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीलर का फायदा यह है कि अब आप बायोसेरेमिक सीलर को बीसी सीलर के नाम से जो आ रहा है, जो नॉन एक्वस है, जो कि 1 ट्यूब है, आप उसको वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन टेक्निक्स में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि बायोसेरेमिक सीलर के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, वो एक है कि उसका जो डेंटीन के साथ ताल्लुक है, यानी कि बॉन्ड टू डेंटीन, इंक्रीज बॉन्ड टू डेंटीन। ठीक है, और दूसरा ये बायो मिनरलाइजेशन। ये दोनों जिस चीज की वजह से हो रहे हैं वो है बिकॉज हमने पढ़ा था कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है,
इसकी खास बात यह है कि ये हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है जैसे ही बायोसेरेमिक सीलर डेंटीन के साथ कांटेक्ट में आता है, उसी वक्त ही कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाता है और हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बायोसेरेमिक सीलर डेंटीन रूट डेंटीन के साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट बना लेता है। और यही बायोसेरेमिक, अगर बायोसेरेमिक पट्टी के फॉर्म में हो और आप उससे वाइटल पल्प थेरेपी कर रहे हो या आप उसको पल्प के ऊपर रख रहे हो, तो वहां पे भी सेल प्रोलिफरेशन होती है और सेल जो है वो रीजनरेशन पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि वहां पे बायोसेरेमिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करके, कैल्शियम रिलीज करके पल्प से सिग्नल्स रिलीज करवाता है और स्टेम सेल से रिपेयरिंग ऑफ द डेंटिन शुरू हो जाती है। इसी तरह ये एक तो काम ये कर रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब डेंटिन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट बनना शुरू हो रहा है, और हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट प्रेसिपिटेशन की वजह से एक बॉन्ड डेंटिनल वॉल और सीलर के दरमियान बनना शुरू हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया बॉन्ड टू डेंटिन, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। और पूछ सकते हैं कि हाउ बायोसेरेमिक सीलर बॉन्ड्स टू द डेंटिन। तो बायोसेरेमिक सीलर बॉन्ड्स टू द डेंटिन ड्यू टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज और ड्यू टू कैल्शियम रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। इसके अलावा जो बायो मिनरलाइजेशन का पॉइंट है, वो बायो मिनरलाइजेशन का पॉइंट कुछ इस तरह से है कि कैल्शियम हाइड्रोक्स जब जब ये बायोसेरेमिक सीलर पेरी एपिकल एरिया में भी डिफ्यूज होता है और वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम सबको पता है कि इसकी इंक्रीज पीएच होती है, और इंक्रीज पीएच की वजह से इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, और इंक्रीज पीएच की वजह से बैक्टीरिया को ये मार देता है, बैक्टीरिया को दबा देता है या बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। इसके साथ साथ जो कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है वो जाके ऐसे स्टेम सेल्स जो कि पड़े हुए होते हैं पेरी एपिकल एरिया में, वहां पे उन स्टेम सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है और उनको कहता है कि ऑस्टियोब्लास्ट बनाओ। अब वो स्टेम सेल से या वो स्टेम सेल्स जाके बोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स को जनरेट करवाते हैं और वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। अब वो कैल्शियम आइंस जब ऑस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन शुरू होती है तो वो कैल्शियम आइंस एक एपेटाइट फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, और वो एपेटाइट फॉर्मेशन से मजीद इंड्यूस होता है ऑस्टियोब्लास्ट प्रोडक्शन, और ऑस्टियोब्लास्ट मिनरलाइजेशन शुरू होती है और बोन मिनरलाइज होना शुरू होती है और न्यू बोन वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखें, जिस तरह हमें पता है कि एमटीए अगर पेरिएपिकल एरिया में डालेंगे तो वहां पे सीमेंटोजेनेसिस भी क्रिएट करवाएगा, यानी कि एमटीए का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है और इंक्रीज पीएच है, वो ऑस्टियोब्लास्ट को भी जाके, यानी कि वो स्टेम सेल्स जो कि बोन बनाने वाले स्टेम सेल्स हैं उनको उनको भी पार्टिसिपेट करवा रही है, और वो इसी तरह पीडीएल को भी इंड्यूस कर रही है कि सीमेंटम बनाओ, सीमेंटोजेनिक पोटेंशियल रखो। यानी कि पेरिएपिकल एरिया में जब भी आप एमटीए रिपेयर करते हैं या आप एमटीए को एपेक्सिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो एमटीए मजीद सीमेंटम बनाता है थ्रू पेरिडोन्शियल लिगामेंट, क्योंकि सीमेंटम बनाने के जो सेल्स हैं, सीमेंटोब्लास्ट जो है वो पीडीएल जनरेट करेगा। और इसी तरह डेंटिन अब जब बनानी है तो पल्प के ऊपर आपने एमटीए रखा तो पल्प के ऊपर आपने एमटीए रखा तो पल्प से जो है वो सेल्स निकलेंगे और वो बनाएंगे डेंटिन को। इसी तरह पीडीएल से सीमेंटम बनता है, और इसी तरह जो स्टेम सेल्स इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, वो जब स्टेम सेल्स को एक्टिवेट होते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ बोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स बढ़ता है, तो वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो वो है बायोसेरेमिक सीलर्स हैं, ये बायो कंपैटिबल भी हैं, बायो एक्टिव भी हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मिनरलाइजिंग फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट को भी ये एक्टिवेट करते हैं। और ये इनका पोटेंशियल जो है वो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स को भी, जो एपिकल पेरियोडोंटाइटिस में जो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स हैं, एपिकल पेरियोडोंटाइटिस में जो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स हैं उनको भी रिपेयर करवाने का काम इनका होता है। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि इनका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऐसा है कि ये
ई फिकैलिस को भी इनहिबिट करते हैं। तो और ये रीट्रीटमेंट्स में या ऐसी जगहों पे जहां पे नीचे ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स बने हुए होते हैं, वहां पे अगर आप बायोसेरेमिक सीलर यूज करें तो ना सिर्फ ये बैक्टीरिया को कम करता है बल्कि ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स को भी बायोमिनरलाइज करता है। तो इसीलिए ये बायोसेरेमिक सीलर एक जब से ये मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से बायोसेरेमिक सीलर्स को बहुत ज्यादा पसीराई मिली है, एंड एवरीवन वांट्स टू यूज बायोसेरेमिक सीलर। बट issue is that bioceramic sealer is expensive, and 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 due to the expensive nature of the material, no one is able, anyone, not everyone is able to use it. I try to use it in my cases, in retreatment cases, and I try to charge every patient, if I am using a bioceramic sealer, I try to charge him 3,000 or 4,000 extra so that it can be in my budget, so that it can come in my budget. अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट के कैल्शियम, ये इसके साथ जो बीसी सीलर है, बायोसेरामिक सीलर है, उसके अंदर ये अगर आपसे पूछ पूछ लें कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसके अंदर कोलोइडल सिलिका होता है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बता दिया है, और इसके अंदर जर्कोनियम ऑक्साइड भी होता है एज अ रेडियो ओपेसिफायर। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली है इसकी, अगर इसमें कोई और बात है तो मैं देख लेता हूँ कि कोई बात है कि नहीं है, वरना इसके बाद हम एक और सीलर की बात करेंगे। लेट्स सी, मैं चेक करता हूँ इसके अंदर और कोई पॉइंट है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तीन और बातें हैं जो कि आपको जहन में रखनी है। एक बात तो ये है कि इसका वर्किंग टाइम कितना है, तो इसका जो वर्किंग टाइम है वो ग्रेटर देन 4 आवर्स इसका वर्किंग टाइम है। अच्छा, जैसे जैसे आप अगर इसको, अच्छा, सेटिंग टाइम है अराउंड 10 आवर्स, 4 आवर्स सेटिंग टाइम जो है, सेटिंग टाइम है 4 आवर्स टू ग्रेटर देन 10 आवर्स। ग्रेटर देन 10 आवर्स जब सेट होगा, जब जो है वो मॉइस्चर कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मॉइस्चर की बायोसेरेमिक सीलर अगर आप यूज कर रहे हैं, टाइप 5 बायोसेरेमिक सीलर यूज कर रहे हैं, यानी कि वो सीलर जिसके साथ एक्वस मीडियम जो है वो सीलर जिसके साथ जो एक्वस मीडियम है आपका, वो है एक्वस मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, नॉन एक्वस है। तो वो बायोसेरेमिक सीलर में नॉन एक्वस मीडियम है, अब वो मॉइस्चर इन्वायरमेंट का लेके सेट होगा। तो अगर आपने बिल्कुल ही पेरिएपिकल एरिया पे कोई मॉइस्चर नहीं है, आपने पेपर पॉइंट से बहुत अच्छे से ड्राई कर दिया, तो इट विल टेक टाइम टू सेट। अच्छा, और एक और बात ये थी कि बायोसेरेमिक सीलर की जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है वो किस वजह से है, उसकी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट हाई पीएच की वजह से है, उसकी more than 12 pH है, इसके अलावा उसका पीएच रिलीज भी बहुत ज्यादा है। और लास्टली, बायोसेरामिक सीलर्स का फ्लो बहुत अच्छा होता है, और उस फ्लो की वजह से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर आपने अच्छे से क्लीन किया है, आपने उसके अंदर डेबरी नहीं छोड़ी है, स्मेयर लेयर नहीं है, यू रिमूव स्मेयर लेयर, यू डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली, तो ये बायोसेरामिक सीलर कैन इजीली पेनिट्रेट इनटू द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एज वेल, बिकॉज इनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इसके अलावा इनका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो कंटिन्यूड रहता है फॉर 3 डेज, और आफ्टर 7 डेज कोई एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं होता। साइटोटॉक्सिसिटी इनकी डिपेंडेंट होती है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। यानी कि जब ये स्टार्ट में होता है तो ये स्टार्ट में साइटोटॉक्सिक होता है, फिर थोड़ा सा और ज्यादा साइटोटॉक्सिक हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद ये नॉन साइटोटॉक्सिक हो जाता है, और कंप्लीट सेट होने के बाद ये बिल्कुल नॉन साइटोटॉक्सिक होता है। 7 डेज के बाद ये कंप्लीटली नॉन साइटोटॉक्सिक होता है। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट जो करेंगे वो है एमटीएफ फिल एपेक्स। अच्छा जी, बात करें तो इसेंशियली चाहे बायोसेरेमिक सीलर हो, चाहे एमटीएफ फिल एपेक्स हो, चाहे एमटीएफ प्लस हो, चाहे बायो रूट कनाल सीलर हो, जो भी एमटीए बेस्ड सीलर्स हैं या कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स हैं,
उनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज यही हैं जो इससे पहले सारी हमने बात की हैं, यानी कि एंटी बैक्टीरियल भी होंगे, हाइड्रोफिलिक भी होंगे, सेल प्रोलिफरेशन भी करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होंगे, साइटोटॉक्सिसिटी भी कम होगी, किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब साइटोटॉक्सिसिटी में भी जो एमटीए फिल एपेक्स है, या बायोसेरामिक सीलर है, या बायो रूट कनाल सीलर है, या एमटीए प्लस है, इन सबकी कंपेरेबल ही होगी साइटोटॉक्सिसिटी। सबकी पीएच ज्यादा होगी, सब एंटीबैक्टीरियल होंगे, सब बॉन्ड बना रहे होंगे डेंटीन के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी एप्टाइट। सब जो है वो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स को जो है वो करेंगे। अब फर्क आता है, जो एक्वस होते हैं उनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज ज्यादा होता है। जिस तरह हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम प्री मिक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, यानी कि कैल्सीपैक्स 2 यूज करते हैं, यानी कि मेटापेक्स यूज करते हैं, और एक यूज करते हैं हम पाउडर फॉर्म को मिक्स करते हैं विद एनीथिंग लाइक सेलाइन और विद डिस्टिल वाटर। और जब मिक्स करते हैं और लेते हैं, तो जो फ्रेशली मिक्स होता है उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसकी कैल्शियम रिलीजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। इसी तरह जो फ्रेशली मिक्सड होगा, यानी कि जो वाटर के साथ फॉरन मिक्स करके ला रहे हैं, उसकी वो ज्यादा होगी, कैल्शियम रिलीजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इसी तरह वो स्टार्ट में ज्यादा एंटी बैक्टीरियल होगा एज कम्पेयर टू नॉन रिलीजिंग, एज कम्पेयर टू नॉन एक्वस वाले। लेकिन बाय जितने भी कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स हैं, उनमें बोन इंडक्शन यानी कि बोन मिनरलाइजेशन जो सबसे ज्यादा है, वो बायोसेरेमिक सीलर्स की ही है। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं एमटीए फिल एपेक्स की। एमटीए फिल एपेक्स की, एमटीए फिल एपेक्स क्या है? एमटीए फिल एपेक्स एक ऐसा रूट कनाल सीलर है जो जिसके अंदर जिसके अंदर रेजन बेस्ड सीलर की भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज रेजन बेस्ड सीलर की हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिलिकेट बेस्ड सीलर्स की हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है एमटीए फिल एपेक्स की, उसकी कॉम्पोजिशन में आपके पास रेजन लाजमी आएगा। तो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं क्या है। इसकी कॉम्पोजिशन में सेलिसाइलेट रेजन है। इसकी कॉम्पोजिशन में नेचुरल रेजन भी है, और बिस्मथ और सिलिका भी है। अगर एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीलर हैज द प्रॉपर्टीज बिटवीन अ रेजन बेस्ड सीलर एंड अ कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर, तो उसमें आंसर क्या होगा? एमटीए फिल एपेक्स। अच्छा, एमटीए फिल एपेक्स की इसके अलावा जितनी हमने प्रॉपर्टीज की बात की है, कि टेंडेंसी टू स्टिमुलेट न्यूक्लिएशन साइट्स फॉर बायो मिनरलाइजेशन या फॉर ऑस्टियोब्लास्ट मिनरलाइजेशन, यानी कि ये न्यूक्लिएशन साइट्स बनाती है, जिस तरह बाकी बायोसेरामिक सीलर्स बना रहे थे एमटीए बेस्ड सीलर, इस तरह एमटीए फिल एपेक्स जो है ये भी बना रही है। इसके साथ जो रेजन कंटेंट है, उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी डेंटीन के साथ जो मोनोब्लॉक इफेक्ट है या डेंटीन के साथ बॉन्डिंग है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी डिफरेंट बायोसेरामिक सीलर्स या एमटीए बेस्ड सीलर्स की है। लेकिन इसकी वही प्रॉपर्टी है कि ये एंटी बायोफिल्म एक्टिविटी भी है इसकी अगेंस्ट ई फिकैलिस, एंटी बायोफिल्म एक्टिविटी, ठीक है। promotes formation of nucleation sites, formation of nucleation sites for biomineralization या ऑस्टियोब्लास्ट मिनरलाइजेशन। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं, ठीक है। और सेटिंग टाइम भी इसका बहुत अच्छा है, यानी कि सेटिंग टाइम इसका जो है वर्किंग टाइम, अच्छा वर्किंग टाइम है, नॉर्मल वर्किंग टाइम, नॉर्मल सेटिंग टाइम है। बस इसके बारे में जो बात जहन में आपने रखनी है वो ये रखनी है कि एमटीए फिल एपेक्स इज रेजिन बेस्ड एंड एन एमटीए बेस्ड सीलर। अब इसमें एक चार्ट बना हुआ है, इसमें एमटीए फिल एपेक्स के बारे में किताब में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं वो बातें भी आपको बता देता हूँ। ये हाँ जी, इसमें एमटीए फिल एपेक्स के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि इसके साथ सैलिसाइलेट रेजन होता है,
और इसको कुछ जगहों पे हाइब्रिड सीलर के नाम से भी पुकारा गया है। हाइब्रिड सीलर, हाइब्रिड सीलर के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने बायोसेरेमिक सीलर की बात की थी, बीसी सीलर यहाँ पे एंडो सीक्वेंस का दिया हुआ है। ठीक है, और एमटीए प्लस की अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एमटीए फिलापेक्स के बारे में भी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं कि इंक्रीज पीएच होगा, इंक्रीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी होगी, एंटी बैक्टीरियल होगा, एंटी बायोफिल्म एक्टिविटी अगेंस्ट ई फिकैलिस होगी, प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिएशन साइट्स फॉर बायोमिनरलाइजेशन, यानी कि ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स को मिनरलाइज करने का पोटेंशियल भी होगा इसमें। इसके अलावा बॉन्डिंग टू डेंटिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी दूसरे सीलर्स की थी, क्योंकि बाकी दूसरे सीलर्स जो हैं वो फौरन ही कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बना के, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट के साथ एपेटाइट बना के फौरन ही डेंटिन के साथ बॉन्ड कर लेते थे, क्योंकि डेंटिन के अंदर भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है और वो इसके अंदर भी एपेटाइट होता है, तो कैल्शियम कैल्शियम भी होता है, तो फॉरन एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाते थे, आपस में बॉन्डिंग हो जाती है सीलर और डेंटिन की। ये पार्ट थोड़ा सा इसमें कमजोर होगा, बाकी वही है। हम अब बात कर लेते हैं एमटीए प्लस सीलर की। तो एमटीए प्लस सीलर भी इसेंशियली वही है, एक इकोनॉमिकल सीलर है। एक इकोनॉमिकल सीलर है जिसके एमटीए प्लस जो है एक इकोनॉमिकल सीलर है। ठीक है, जिसके अंदर पाउडर होता है और जेल होता है। जो पाउडर और जेल होता है इससे मिला के एक सीलर बन जाता है। पाउडर वही होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एमटीए का पाउडर होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और उस पाउडर की वजह से जब उसके साथ जेल मिलती है तो एक अच्छा सा एक सीलर नुमा मटेरियल बन जाता है, जो कि जिसकी कैपेसिटी होती है टू रिलीज, ठीक है, रिलीज करता है कैल्शियम आइंस को। कैल्शियम आइंस रिलीज करता है, लोकल पीएच को बढ़ा देता है, और पीएच को बढ़ाने की वजह से एंटी बैक्टीरियल भी होता है। दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर एमटीए बेस्ड सीलर्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर एमटीए प्लस की या बायोसेरामिक सीलर की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ फर्क उतना ही आ जाता है कि जो बायोसेरामिक सीलर है उसके साथ रेडियो पेसिफायर जो है वो टैंटलम ऑक्साइड या जर्कोनियम ऑक्साइड है, वो डिस्कलर नहीं करेगा। उसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, ज्यादा जल्दी इंडक्शन करेगा बोन की, आपका बोन मैट्रिक्स प्रोटीन्स को और स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करके बोन फॉर्मेशन सारे ही करवाएंगे, सारे ही एंटीबैक्टीरियल होंगे, सारे ही इफिकैलिस के खिलाफ एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बायोसेरामिक सीलर की हमारी वो होती है, खत्म होती है पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आई है अब नई मार्केट में जिसको कहते हैं बायोसेरामिक जीपी। बायोसेरामिक जीपी कुछ भी नहीं है, जिस तरह एक्टिव जीपी थी जिसके ऊपर ग्लास आयनोमर सीमेंट के पार्टिकल्स कोटेड होते थे और ग्लास आयनोमर सीमेंट के साथ यूज होती थी, इसी तरह बायोसेरामिक जीपी जो है, बायोसेरामिक जीपी जो है वो बायोसेरामिक सीलर के साथ यूज करने की है। इसके अंदर भी नैनो पार्टिकल्स बायोसेरामिक के इंक्लूडेड होते हैं, और उनकी वजह से कंपनी कहती है कि एक मोनोब्लॉक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमने अब तक मैंने बात नहीं की, वैसे मैंने बताना भूल गया, लेकिन याद रहे कि जीपी का जितने भी कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स हैं उससे कोई बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होता। कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स का बॉन्ड होता है अच्छा डेंटीन के साथ, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनने की वजह से, क्योंकि कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है सीलर में। लेकिन एज कंपेयर टू जीपी के साथ नहीं होता, तो इन्होंने बायोसेरामिक जीपी बना दी, और बायोसेरामिक जीपी का काम इन्होंने यही रखा कि बायोसेरामिक जीपी आपका सेरामिक सीलर के साथ भी अच्छा बॉन्ड बनाएगी, और डेंटिन के साथ भी अच्छा बॉन्ड बनाएगी, तो एक मोनो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। इनशाला अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और चीज इस टॉपिक में कंफ्यूज करती हो तो हम जरूर उस पर बात कर लेंगे। एक छोटा सा बता देता हूँ सीलर्स के बारे में, कि सीलर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, जस्ट एन ओवरव्यू। सीलर्स हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स में हमारे पास ऐसे सीलर्स आ जाते हैं जो कि जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड होते हैं, जिनमें रिकर्ड सीलर है, जिनमें वॉच सीलर है, जिनमें ट्यूबिसील है। ये सारे सीलर्स का मसला ये है कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इनके साथ सॉल्युबिलिटी के अलावा इनकी साइटोटॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होती है।
सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, साइटोटॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, इसके अलावा श्रिंकेज भी है सेटिंग पे, और स्लो सेटिंग भी है, लेकिन इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है। जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीलर्स का एक और मसला ये है कि स्टेन करते हैं टूथ स्ट्रक्चर को ये, ठीक है, और स्टेन करने की वजह से नॉन स्टेनिंग भी सोल्यूशन आए हैं जिनमें ग्रॉसमैन फार्मूला भी है। इसके अलावा जो जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस्ड सीलर्स हैं अब कम यूज होते हैं क्योंकि उनकी इंक्रीज साइटोटॉक्सिसिटी है, और वो पेरी एपिकल एरिया में कभी कभार रिएक्शन भी करवा देते हैं, पेरिपेरिकल एरिया में टिश्यू इरिटेशन भी करवा देते हैं, इसीलिए वो खास बहुत ज्यादा जिंक ऑक्साइड यूजनल सीलर्स आजकल यूज नहीं होते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर्स हाँ आजकल यूज होते हैं, बिकॉज उनके बारे में ये था कि उनका एक पोटेंशियल था, उनकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी थी, उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी तो थी क्योंकि हम इंट्राकनाल मेडिकमेंट के तौर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते थे। एक और प्रॉपर्टी थी कि उनकी ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल था, लेकिन ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल कभी भी साबित नहीं हुआ, और इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर्स को बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली। लेकिन आज भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर यूज करते हैं क्योंकि ये एक अच्छा सीलर है, लेकिन कुछ मसाइल हैं इसके साथ, सॉल्यूबल है, ऑस्टियोजेनिक नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से सील नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, फिर इसकी वजह से इन्होंने एक सीलर निकाला जिसको जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिक्स कर दिया, इसको बोला कैल्सीबायोटिक सीलर है। वो भी कोई बहुत ज्यादा कारआमद नहीं हुआ। जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस्ड सीलर हो या सील एपेक्स हो, इन सब की कॉम्पोजिशन अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर लें, क्योंकि कभी कभार पूछ ली जाती है। सील एपेक्स में भी इसी तरह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर उसके अंदर बेस भी है, कैटलिस्ट भी है। तो अगर दो बड़े बड़े कैटलिस्ट याद कर लें और दो बड़े बड़े बेसिस याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा। जिस तरह जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आप याद कर लें बेस के तौर पे, और कैटलिस्ट के तौर पे याद कर लें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और बेरियम सल्फेट, आइसोब्यूटाइल सैलिसाइलेट, ये भी कैटलिस्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा आ जाए नॉन यूजेनॉल सीलर्स। नॉन यूजेनॉल सीलर्स भी आए मार्केट में क्योंकि यूजेनॉल की इरिटेटिंग प्रॉपर्टी थी, फिर डिस्कलरेशन प्रॉपर्टी थी, लेकिन ज्यादातर पेरी और ड्रेसिंग के तौर पे नॉन यूजेनॉल यूज हुआ, और इतना ज्यादा उसको सीलर्स में पजीराई नहीं मिली। इसमें भी एसिड और बेस कंपोनेंट है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें। फिर आए ग्लास आयनोमर बेस्ड सीलर्स। ग्लास आयनोमर बेस्ड सीलर्स के साथ उनकी जीपी भी अलग से आई, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो पूरा मोनोब्लॉक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन एज सच मोनोब्लॉक इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, और रीट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, और उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत मिनिमम थी। और मसला ये था कि ग्लास एनोमा बेस्ड सीलर्स को यूज करने से पहले उनका कंडीशनर लगाना पड़ता था, और वो कंडीशनर पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता था। फिर आए रेजन बेस्ड सीलर्स, और रेजन बेस्ड सीलर्स इस जहन को बना के आए कि अब ये रेजन बेस्ड सीलर्स तो पक्का मोनोब्लॉक इफेक्ट बनाएंगे। और क्योंकि रेजन का उस वक्त दौर भी चल रहा था, क्योंकि कॉम्पोजिट भी बहुत ज्यादा इन हो गई थी मार्केट में, तो इसी तरह रेजन बेस्ड सीलर्स आए, और रेजन बेस्ड सीलर ने दावा किया कि ये बहुत अच्छी अडेशन टू द डेंटिन, इनहेरेंट अडेशन टू द डेंटिन क्रिएट करेंगे। इसमें दो तरह के सीलर्स आए, एक है एपॉक्सी बेस्ड सीलर्स आए, और एक है मेथाक्लेट रेजन बेस्ड सीलर्स। एपॉक्सी रेजन बेस्ड सीलर्स में AH26 आया और AH+ आया। AH26 में मसला ये था कि AH26 फॉर्मल्डिहाइड रिलीज करता था, तो उसको बैन कर दिया गया, और AH+ निकाला गया जो उसका फॉर्मल्डिहाइड रिलीज नहीं हुआ। आज भी अगर कोई सीलर को कंपेयर किया जाता है बायोसेरेमिक या एमटीए बेस्ड, तो AH+ से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि AH+ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सीलर था, और इसकी फॉर्मेशन में दो चीजें होती थी। एक एक होता था इपोक्साइड पेस्ट, और एक होता था अमाइन पेस्ट। जो इपोक्साइड पेस्ट होता था उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता था वो बिस्फेनॉल ए होता था, यानी कि बिस्फेनॉल ए डाइग्लिसराइल ईथर, और साथ में इपोक्साइड पेस्ट के साथ में BPA के साथ में बिस्फेनॉल ए डाइग्लिसराइल ईथर के साथ में इसमें इनके पास फिलर भी होता था। अमाइन पेस्ट में अमोनियम होता था, अमाइन पेस्ट में प्राइमरी मोनोमर, सेकेंडरी डायामाइन, डाई सेकेंडरी डायामाइन, सिलिकॉन ऑयल, और इसमें भी फिलर होता था। अब ये इनका वर्किंग टाइम भी 4 आवर्स था, और ये
AH+ सीलर बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन अभी भी ये ऐसा सीलर नहीं था जिसमें हम ये कहें कि ये सीलर एक डेंटीन के साथ मोनोब्लॉक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इन्होंने एपॉक्सी रेजन बेस्ड सीलर्स के साथ साथ मेथाक्रिलेट रेजन बेस्ड सीलर्स भी लॉन्च कर दिए। मेथाक्रिलेट रेजन बेस्ड सीलर्स, मेथाक्रिलेट हम सबको पता है कि मेथाक्रिलेट क्या होता है। मेथाक्रिलेट जो हम यूज करते हैं, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट जिसका एक्रिलिक होता है, और हमारी मिथाइल मेथाक्रिलेट हमारा जो रेजन होता है, कॉम्पोजिट रेजन होता है, वो भी मेथाक्रिलेट बेस्ड होता है। उसी तरह मेथाक्रिलेट रेजन बेस्ड सीलर्स आए। और मेथाक्रिलेट रेजन बेस्ड सीलर्स 4 जनरेशन में आए। पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन हाइड्रोफिलिक थी। और पहली जनरेशन में था कि आप सारा रेजन हाइड्रोफिलिक है, रेजन सीलर डाल दें और इंजेक्ट कर दें कनाल के अंदर और क्योर कर दें। लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल रहा क्योंकि इसके अंदर हीमा था और इसके अंदर जो है वो पॉली हाइड्रोक्सीथाइल मेथाक्रिलेट हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन ये भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा क्योंकि इसने भी एन मास रूट फिलिंग कर दी, लेकिन कंप्लीटली कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मोनोब्लॉक इफेक्ट नहीं था, डेंटिन के साथ कोई अडेजन अच्छी नहीं थी। फिर ये थे वन जनरेशन 1। जनरेशन 2 में जो आए वो आए, जनरेशन 2 में सीलर्स आए जो कि हाइड्रोफिलिक थे। और हाइड्रोफिलिक होने के साथ साथ उनके अंदर डेंटीन अडहेसिव, डेंटीन डज नॉट रिक्वायर डेंटीन अडहेसिव। डेंटीन अडहेसिव हाइड्रोफिलिक भी थे, उनको अडहेसिव भी नहीं था। और वो एक्सेसरी कनाल, उन्होंने ये दावा किया कि एक्सेसरी कनाल्स में भी फ्लो कर जाते हैं। और उनमें जो उनके साथ उनके पेपर, उनके साथ उनकी जीपीज भी आई जो एंडोरेस पॉइंट्स के, एंडोरेस पॉइंट्स होते हैं और एंडोरेस सीलर था। एंडोरेस पॉइंट्स का एंडोरेस सीलर यूज होना शुरू हुआ, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया। ठीक है जी। और ये जो सेकंड जनरेशन थे, ये बेस थे नॉन एचिंग पे और हाइड्रोफिलिक इन नेचर पे। एंडोरेस कंपनी थी जो बना रही थी, और एंडोरेस इसका एंडोरेस की जीपीस भी इसके साथ यूज हो रही थी, और ये टेक डीएमए बेस्ड थे। ट्राई इथाइल ग्लाइसिडाइल मेथाक्रिलेट, ट्राई टेक डीएमए था। ठीक है। अब टेक डीएमए था ये, और जनरेशन 1 जो था वो हीमा था, हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रिलेट था। ये टेक डीएमए बेस था। तीसरा आया सेल्फ एचिंग, जिसको नाम दिया इन्होंने रियल सील का। सेल्फ एचिंग का मकसद ये था कि सेल्फ एचिंग प्राइमर यूज होगा, और सेल्फ एचिंग प्राइमर के साथ जीपी यूज होगी। और सेल्फ एचिंग प्राइमर, इसमें एक खास किस्म का सेल्फ एचिंग प्राइमर था जिसको 2 एक्रिलो अमाइडो 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, एम्प्स के नाम से, 2 एक्राइलो अमाइडो 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड था, जो कि इनका सेल्फ एचिंग प्राइमर था, या नॉन फंक्शनल या फंक्शनल एसिडिक मोनोमर था। ये सिर्फ और सिर्फ ये यूज होता था, और ये यूज करने के बाद आप डायरेक्ट ही सीलर यूज कर देते थे। ये कुछ अरसे चला, उसके बाद ये तीसरी जनरेशन थी और नाम आया था रियल सील के नाम से। ठीक है। फिर आए फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन जो थे वो सेल्फ अडेसिव थे। और इसके साथ इन्होंने एक पॉलीमर बेस्ड, जीपी को हटा के एक पॉलीमर बेस्ड फिलिंग मटेरियल भी यूज किया, जिसको इन्होंने कहा एपीफिनी। तो एपीफिनी के साथ फोर्थ जनरेशन मेटासील के नाम से आई, और सेल्फ अडेसिव था। यानी कि आजकल जिस तरह सेल्फ अडेसिव सीमेंट्स होते हैं उसी तरह ये मौजूद होता है। और ये एपीफिनी पॉलीमर बेस्ड जो एक गटा पर्चा की तरह का मटेरियल होता है, लेकिन पॉलीमेरिक मटेरियल होता है ये। और ये प्लास्टिक पॉलीमेरिक मटेरियल होता है, इसके साथ यूज किया गया और कहा गया कि इसके अंदर जो फंक्शनल मोनोमर है वो 4 मेटा है, जो कि आज भी सेल्फ एडेसिव सीमेंट्स में यूज होता है। ये भी मेटासील जो है वो कोल्ड कैंपेक्शन और सिंगल कोन टेक्निक के लिए यूज हुआ। और ये साथ में इसके रेजोलॉन भी होता था यूज, ज्यादातर रेजोलॉन, मैं एपिफेनी बोल रहा था, ये रेजोलॉन के साथ, रेजोलॉन एक पॉलीमेरिक मटेरियल है, उसके साथ ये यूज होता रहा। लेकिन ये भी कोई खास, इसको भी कोई खास नहीं मिला। और अब जो नई लॉन्च हुई है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हैं। और जितने भी रेजिन बेस्ड सीलर्स थे, या जिंक ऑक्साइड इथेनॉल बेस्ड सीलर्स थे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर्स थे, वो मार्केट में नहीं है। एक AH+ है और एक बायोसेरेमिक सीलर है, या MTA बेस्ड सीलर, या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर है। इसके अलावा सिलिकॉन बेस्ड सीलर्स भी है, जिस तरह रोको सील के नाम से आया,
और रोको, ये पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन बेस्ड सीलर्स थे, और ये एक्सपेंडेबल सीलर्स थे, ये एक्सपेंड करते थे, और जीपी भी इनके साथ इनकॉर्पोरेटेड होती थी। कैप्सूल के फॉर्म में आते थे कि आप गर्म करें, कैप्सूल को आप लगाएं और आप कनाल के अंदर इंजेक्ट कर दें, तो जीपी भी साथ में इंजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल थी जीपी साथ में। 20 to 30 मिनट में सेट हो जाता था। वर्किंग टाइम इसका 15 मिनट्स था। कनाल की रेगुलरिटीज में चला जाता था, लेकिन इसको भी कोई खास पजीराई नहीं मिली। कुछ अरसा रहा सीलर, फिर इतना ज्यादा नहीं मिला, और फाइनली कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स आए, जिनके बारे में हमने अभी बात की है। जितना भी मैंने अभी आखिर में आपको ये सारा सीलर्स का एक ओवरव्यू दिया, ये एक ओवरव्यू ही था। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर देख लें। ये एक सिर्फ और सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे दिया। मैंने कहा कि मैं सीलर्स को जब डिस्कस किया ही है, बायोसेरामिक सीलर को, एम टी एफ एपेक्स को, एम टी एफ प्लस को, तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको लेक्चर होपफुली पसंद आए, समझ आए। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप ऑलवेज यू कैन मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।